Hello, the physics enthusiast, the physical world enthusiast, or the cosmos enthusiast. Welcome to the Feynman Physics. So today, what I'm going to give you in this video, in this short video, I don't know how long it will be going to. The motto behind this video is actually to give you the point of view of physicists, to let you know, to let you make, to think how the physicists actually think. Like we know, in today's world, we only rote learn the things. But I'm going to make you what I have learned from Feynman physics lectures. I'm going to give you the crux of these lectures. I'm going to make you think about these physical quantities, this physical world, how the physicists actually think about things, how they come to make physical formulas, the physics formulas. So that's the motive behind these lectures. So this is our first video. So today I'm going to give you the intuition behind the cross product. Cross product. नो क्रॉस प्रोडक्ट ये कोई ऐसी नहीं कि कोई स्काई रॉकेट या कोई वेक्टर से कोई एक डिफरेंट चीज़ नहीं है। ये जैसे आपके पास जो वेलोसिटी है, जैसे ये एक वेक्टर है, फोर्स एक वेक्टर है। क्रॉस प्रोडक्ट के जो होते हैं क्रॉस प्रोडक्ट, ये एक मेथड है टू एनालाइज द वेक्टर्स इन 3 डायमेंशंस। जैसे कि आपके पास वेलोसिटी है और फोर्स है, इसको आप इजीली जो है 2 डायमेंशंस में या 3 डायमेंशंस में इजीली जो है आप इसको विजुअलाइज कर सकते हैं। अगर 2 डायमेंशंस में आप वेलोसिटी को इजीली जो है एनालाइज कर सकते हैं, फोर्स को इजीली एनालाइज कर सकते हैं, और या आपको 2 डायमेंशंस में ही पता लग जाएगा कि ये जो है ये वेक्टर्स हैं। नाउ द व्हाट एक्चुअली इज क्रॉस प्रोडक्ट, इट इज़ दैट जैसे कि आपके पास कोई वेक्टर है, जैसे कि टॉर्क। टॉर्क जो है, टॉर्क एक वेक्टर है, लेकिन जब आप इसको 2 डायमेंशंस में देखते हैं सो इट डज नॉट बिहेव लाइक अ वेक्टर, बट व्हेन यू कम टू द 3 डायमेंशंस, टॉर्क बिहेव एज अ वेक्टर. So our first motive should be that. But let me ask you one thing. What actually is a vector? वेक्टर हम एक्चुअली किसे कहते हैं? वेक्टर, what actually is a vector? Is it something that has the direction in magnitude? Yes, clearly that is vector. Every physical quantity has magnitude, but the physical quantity that has direction as well, that is vector. But that is not the actual definition of vector. So what is the actual definition of vectors? So you can say any physical quantity is a vector if it behaves like, you can say, the position vector. Position is a vector. But how position is a vector? So first let us suppose that this is a coordinate system. This is a coordinate system, xy coordinate system. This is the y axis, this is the x axis. And for example, there is a point in this xy coordinate system. This point has this x coordinate and this y coordinate. But what if we rotate the coordinate system? So if we have now this new coordinate system, this rotated coordinate system at an angle theta with the primer coordinate system, let us make a new. So this is the primer coordinate system and this is the rotated. This is x prime, this is x, no, this is y prime, this is y, this is x prime, this is x. So in first coordinate system, this point has its x-axis and y-axis as this, y and x. But when you keep that point stationary, but you change the frame of reference, you change the coordinate system, but not transitionally, rotationally at an angle theta. As per geometry, you will see that this x prime is equal to x cos theta plus y sin theta plus y sin theta, and this y prime will be equal to y cos theta minus x sin theta, and this is by pure geometry. You can see this, and you can see this using basic geometry. So when something behaves like this, like force to behave like this positional vector, when a physical quantity on rotating the coordinate system behaves
like the position vector, we call it a vector. We call it a vector. That's the definition of a vector. Okay, so let's come to the, तो हमने देखा कि जो वेक्टर है, वेक्टर हम उसको बोलते हैं जो फॉर एग्जांपल हमारे कुछ कोई पॉइंट है, वो एक एक्सिस में उसकी कुछ डायमेंशंस हैं, एक्स एक्सिस में और वाई एक्सिस में। तो जब हम अपने कोऑर्डिनेट सिस्टम को रोटेट करेंगे तो जो सेकंड कोऑर्डिनेट सिस्टम में जो हमारे पास कोऑर्डिनेट्स उस पॉइंट के, वो हमें पहले कोऑर्डिनेट सिस्टम के जो है कोऑर्डिनेट से मिलने चाहिए। जैसे कि हमने देखा एक्स प्राइम वी get like this x cos theta plus y sin theta, and we get the y prime as y cos theta minus x cos theta। तो आप देख रहे हैं कि हम फर्स्ट कोऑर्डिनेट सिस्टम से जो है वो सेकंड कोऑर्डिनेट सिस्टम के डायमेंशंस जो है, जो कोऑर्डिनेट्स हैं, वो देख सकते हैं। तो दैट इज अ वेक्टर। सो इफ सम फिजिकल क्वांटिटी बिहेव्स लाइक दिस, दैट्स व्हाट वी कॉल अ वेक्टर। बट नाउ लेट्स कम टू see the vector in a 3 dimension. That was a vector in 2 dimension. Now let's see the dimension in the rotation of coordinate system in 3 dimensions. In 3 dimensions, so we have torque. Torque is a physical quantity. Let's not say it is a vector. We will include it. So it's a physical quantity. Okay. तो टॉर्क को हम देखते हैं 3 डायमेंशंस में। ओके, सो व्हेन वी ट्राई टू एनालाइज वेक्टर द टॉर्क इन 3 डायमेंशंस, तो फाइमन क्या कहते हैं? फाइमन कहते हैं कि जब आप 3 डायमेंशंस के साथ डील कर रहे हैं तो आप प्लेन्स में देखना शुरू कर दीजिए। जैसे हम कंपोनेंट लेते थे 2 डायमेंशंस में, एक्स कंपोनेंट, वाई कंपोनेंट, जी कंपोनेंट। तो फाइमन कहते हैं कि जब आप 3 डायमेंशंस में जाए तो आप प्लेन जो है, प्लेन्स में अलग अलग जो है सेग्रीगेट करना शुरू कर दें, एक्स वाई, वाई जी, देन एक्स जी। सो दीज आर द डिफरेंट प्लेन्स। सो when we'll analyze the torque in 3 dimensions, we will keep the x-axis and the z-axis constant. Like in the previous 2 dimension analysis, we kept the z-axis constant, unchanged, unrotated. So let us try to analyze it. So torque in x-y plane will be, so जब हम x-y plane को जो है x और तो बेसिकली हम क्या कर रहे हैं, तो z एक्सिस को जो है हमने कांस्टेंट रखा है, लेकिन एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस को हमने जो है रोटेट कर दिया है। तो जब हम उसको रोटेट करेंगे, अब हम 3 डायमेंशंस में किसी वेक्टर को एनालाइज करना, वो होता क्या है? इट इज़ नथिंग। जब आप प्लेन्स को सेग्रीगेट करते थे, एक्स वाई प्लेन को वाई जी प्लेन, एक्स जी प्लेन, तो ये आपको 3 डायमेंशंस में जो है वेक्टर एनालिसिस देता है। जो हमने पहले एक्स कंपोनेंट, वाई कंपोनेंट लिए थे, जी कंपोनेंट को हमने कांस्टेंट रखा था, तो ये हमको 2 डायमेंशन एनालिसिस दे रहा था। तो हम प्लेन्स को लेंगे, एक्स वाई प्लेन, वाई जी प्लेन एंड एक्स जी प्लेन। सो इट विल गिव अस दी 3 डायमेंशनल एनालिसिस ऑफ अ वेक्टर। तो जब टॉर्क को लेते हैं, टॉर्क की हम सबसे पहले एक्स वाई प्लेन में एनालिसिस लेते हैं। सो दैट विल बी, एज यू मे नो, इट इज एफ एक्स एक्स एफ वाई माइनस वाई एफ एक्स, देन एक्स tau torque in yz plane, it will be y fz minus z fy. Then torque in xz plane will be x fz minus z fx. So this is the torque in 3 planes, and it's a 3-dimensional analysis. So when we'll rotate the x-axis and y-axis, so our new x-axis is x prime, new y-axis is y prime, and z prime is same, it's constant. We have not changed the or rotated it. So now what we get, tau x prime y prime, it will be x prime f y prime minus y prime f x prime. And we know it from the vector analysis that x prime is x cos theta plus y sin theta, and fy prime is fy cos theta minus fx sin theta. So same is here, y cos theta minus x sin theta, fx cos theta plus fy sin theta. So जब आप इनको सॉल्व करोगे तो आपको मिलेगा x fy माइनस y fx। तो आप बोलोगे वो क्यों, ये तो सेम आ रहा है एक्स वाई प्लेन में और एक्स प्राइम वाई प्राइम प्लेन में। तो देखिए कैसे, जब आपने इस प्लेन को जो है, एंड दिस इज द एक्स जी एक्सिस, एक्स एंड वाई, आपने जब रोटेट किया वाई को और एक्स को, दिस इज न्यू एक्स प्राइम वाई प्राइम, और जी को आपने सेम रखा। तो देखिए ये जो प्लेन है, ये प्लेन तो सेम ही है, एक्स वाई प्लेन जो है, एक्स वाई प्लेन तो सेम ही है, ये एक ही प्लेन में है। जिस प्लेन में एक्स वाई है उसी प्लेन में एक्स
देखिए जब आपने रोटेट किया अपने कोऑर्डिनेट सिस्टम को, आपने जो है एक्स और वाई को, वाई एक्सिस को रोटेट किया, जी को आपने सेम रखा, तो उसमें क्या हुआ कि जो है वाई प्राइम और एक्स प्राइम का जो प्लेन है वो तो सेम प्लेन में रहा ना, वाई और जैसे कि एक्स और वाई प्लेन में, बट एक्स और जी प्लेन जो है वो शिफ्ट हो गए, वाई और जी प्लेन जो है वो शिफ्ट हो गए, तो एक्स और वाई जो है ये सेम रहेंगे। सो अब हम टॉर्क इन वाई जी प्लेन में देखेंगे। सो इट विल बी वाई कॉस थीटा माइनस एक्स साइन थीटा टाइम्स एफ जी जो है ये सेम रहेगा, ये अनचेंज्ड है, माइनस जी टाइम्स एफ वाई कॉस थीटा माइनस एफ एक्स साइन थीटा। सो जब आप इसको जो है सॉल्व करोगे तो सॉल्व करने पर आपको ये मिलेगा वाई एफ एक्स माइनस जी एफ वाई कॉस थीटा प्लस जी एफ एक्स माइनस एक्स एफ जी साइन थीटा। सो इस क्वांटिटी को आप देख रहे हैं ये क्या है, दिस इज टॉर्क इन वाई जी प्लेन, सो टॉर्क इन वाई जी प्लेन टाइम्स कॉस थीटा, और आप इस क्वांटिटी को जो है आप देख सकते हैं, दिस इज टॉर्क इन जी एक्स प्लेन टाइम्स साइन थीटा। सो योर टॉर्क इन y prime z prime y prime z prime और z is same, it is torque in yz cos theta plus torque in zx sin theta। सो अब देख रहे हो आप जो है एक प्लेन के कोऑर्डिनेट्स को जो है वो बाकी दो कोऑर्डिनेट्स के टॉर्क को जो है वो उन कोऑर्डिनेट्स से आप निकाल रहे हैं, एक प्लेन के कोऑर्डिनेट्स दूसरे दो प्लेन्स के कोऑर्डिनेट्स उनसे निकाल रहे हैं, दैट इज वेक्टर। नाउ वी सी द टॉर्क इन xz plane, torque in xz plane, it will be x prime z plane, so it will be x cos theta plus y sin theta times fz minus z fx cos theta plus fy sin theta। so इसको सॉल्व करने पर आपको मिलेगा टॉर्क इन xz cos theta minus टॉर्क इन yz sin theta। सो ये आप देख सकते हैं। सो हमें जो है हमने अब तक जो देखा दैट इज टॉर्क इन एक्स प्राइम वाई प्राइम, टॉर्क इन वाई प्राइम जी प्राइम प्लेन, टॉर्क इन एक्स प्राइम इन जी प्राइम प्लेन, जी इज कॉन्स्टेंट सो इट इज जी प्राइम इज जी। सो टॉर्क इन एक्स प्राइम वाई प्राइम वो सेम रहेगा, वाई प्राइम जी में जो है टॉर्क इन वो रहेगा टॉर्क इन वाई जी कॉस थीटा प्लस टॉर्क इन एक्स जी प्लेन साइन थीटा, टॉर्क इन एक्स प्राइम जी इज टॉर्क इन वाई जी कॉस थीटा प्लेन माइनस टॉर्क वाई जी प्लेन साइन थीटा। सो अगर आप इसको एनालाइज करेंगे, आप इसको गौर से देखेंगे, तो जब हमने देखा था x इज x प्राइम, इट इज x cos थीटा प्लस y sin थीटा, x component of the second coordinate system and y component of the second coordinate system, it is y cos theta minus x sin theta, and z prime is same, it is unchanged as you can see। so अगर आप इसको z मानेंगे, टॉर्क इन xy प्लेन इज z, अगर आप इसको z कंपोनेंट मानोगे, z कंपोनेंट और ये जो है टॉर्क इन yz ये क्या है, टॉर्क इन yz cos थीटा प्लस टॉर्क इन xz sin थीटा, ये किससे आपको मैच करता हुआ दिखाई दे रहा है, तो x कंपोनेंट के साथ। तो टॉर्क इन y प्राइम z इसको हम आप मानोगे x प्राइम, yz को x, tz को xz को इट इज़ y कंपोनेंट। तो इसी तरह जो है x प्राइम z को जो है आप मानोगे y प्राइम कंपोनेंट, और ये जो है yz cos थीटा माइनस टॉर्क इन yz एंड इट इज xz, इट इज yz। सो इस तरह आप जब इसको जो है सुपर इम्पोज करोगे तो आपको ये सेम दिखेगा। सो ये जो है थ्री डायमेंशनल कंपोनेंट्स हैं, तो आप देख सकते हैं कि जो टॉर्क के जो थ्री डायमेंशनल कंपोनेंट्स हैं ये भी सेम उसी तरह जो है
वेक्टर में रिजॉल्व हो रहे हैं, जैसे कि पोजीशन वेक्टर हो रहा था, तो उस हिसाब से हम बोल सकते हैं कि टॉर्क इज अ वेक्टर, टॉर्क इज अ वेक्टर। और इसकी जो है अब टॉर्क की जो है टॉर्क की डायरेक्शन देनी पड़ेगी, है ना। तो उसके लिए क्या करना है, जब एक्स वाई प्राइम में आप देख रहे हैं इसको, टॉर्क को, एक्स प्राइम जो है पोजीशन वेक्टर का, वो तो एक कंपोनेंट है एक्स प्राइम में, उसकी तो एक डायरेक्शन है एक्स एक्सिस में। लेकिन जब एक्स वाई प्लेन में आप देख रहे हैं तो उसकी डायरेक्शन जो है वो आपको उस प्लेन की परपेंडिकुलर एक एक्सिस डालनी है, तो वो उसकी डायरेक्शन होगी। ओके, जब वाई सी में देखेंगे, वाई सी प्लेन में एक परपेंडिकुलर एक्सिस डालेंगे, वो उसकी डायरेक्शन होगी। जब एक्स जी में देखेंगे, एक्स जी प्लेन में एक परपेंडिकुलर एक डालेंगे, परपेंडिकुलर एक्सिस एक डालेंगे, तो वो उसकी पोजीशन, उसकी जो है डायरेक्शन होगी। सो टॉर्क की जो डायरेक्शन है हर एक कंपोनेंट में, वो अगर आप एक्स वाई प्लेन में बात करेंगे तो एक्स वाई प्लेन में ये जेड एक्सिस में होगी, वाई जी प्लेन में ये एक्स एक्सिस में होगी। तो ये एक्स कंपोनेंट है, ये जी कंपोनेंट है। एक्स जी की बात करेंगे, वाई एक्सिस में होगी, तो ये वाई कंपोनेंट है, ठीक है। और सिर्फ टॉर्क को आप ही और जब आप इसको हम वेक्टर में कैसे डोनेट करें, सो टॉर्क को हम जो है इस तरह डिनोट करते हैं, एक्स क्रॉस वाई। इसका क्या मतलब हुआ, इट इज़ नॉट एक्स, आप इसको ले सकते हो और क्रॉस एफ, क्योंकि और जो है इसके कंपोनेंट होंगे वाई जी एक्स। तो इसका क्या मतलब हुआ, इसका मतलब हुआ टॉर्क इन एक्स वाई, टॉर्क इन वाई जी, टॉर्क इन एक्स जी प्लेन। तो इसका ये मतलब हुआ क्रॉस प्रोडक्ट का, जैसे कि हमने ऊपर किया है। जैसे कि आप देखते हैं डॉट प्रोडक्ट का क्या होता है, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ डॉट प्रोडक्ट। डॉट प्रोडक्ट का क्या मतलब होता है, एक्स डॉट एक्स क्या मतलब होता है, एक्स स्क्वायर मीन्स, फॉर एग्जाम्पल और डॉट और करते हैं, और स्क्वायर इट इज स्क्वायर ऑफ, और इन एक्स एक्सिस स्क्वायर प्लस स्क्वायर ऑफ द और component in y axis plus square of the or component in z axis, x square plus y square plus z square। ये मतलब होता है डॉट प्रोडक्ट का। तो उसी तरह क्रॉस प्रोडक्ट का ये मतलब होता है। और आप किसी भी वेक्टर को चाहे वो वेलोसिटी है, चाहे वो फोर्स है, चाहे वो पोजीशन है, तो आप किसी भी वेक्टर को जो है क्रॉस प्रोडक्ट में लिख सकते हैं। सो दिस वाज द इंट्यूशन बिहाइंड क्रॉस प्रोडक्ट बाय एन एग्जांपल, बाय टेकिंग एन एग्जांपल टॉर्क। और इसकी जो क्रॉस प्रोडक्ट की कुछ